नमस्कार सकल के हेलो एवरीवन नमस्ते सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के एखाने हमरा बांग्ला दिए प्रथमे शुरू करছি। पहले हम बंगाली में बोल लेते हैं और मैं देखती हूँ वीडियो बनाते बनाते अगर लगती है कि ये टॉपिक हिंदी में भी बता दूँ। ऐसे ही है आज के टॉपिक इन्फॉर्मेशन वाला इन्फॉर्मेटिव टाइप। तो बंगाली में कहते हैं बांग्ला शुरू करबो तार आगे अवश्यई प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। प्रचुर परिमाणे लाइक कमेंट शेयर এবং সাবস্ক্রাইব করুন। দেখতে থাকুন এসবি লিটারেচার আর বেল আইকনকে প্রেস করে রাখুন বা রাখো যাতে করে কোনো রকম কোনো ইম্পর্টেন্ট আপডেটস ইনফরমেশনস পড়াশোনা সম্পর্কিত কথাবার্তা তোমাদের দ্বারা বিচ্যুত বা মিস না হয়ে যায়। ঠিক আছে, তো আমরা প্রথমে বাংলাতেই বলছি। তার আগে একবার ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড আছে কিন্তু আগের দিকে একটু চোখ রাখা যাক। আমরা এখানে रोमांटिक एज ऑफ रोमांटिसिज्म पर्यन्त कमप्लीट करे रेखेछिलाम। आज के विक्टोरियन पिरियडे आमरा शुरू करलाम। तो आरेक दिन लागबे विक्टोरियन पिरियड 1 থেকে 2 दिन लागबे, मॉडर्न पिरियड 1 दिन लागबे और पोस्ट मॉडर्न 2 दिन। माने आमरा 5 दिनेर मध्ये এই ब्रिटिश लिटारेचारके कमप्लीट करब। तारपर आमरा अन्य टपिके যাব पेपर 1 এবং पेपर 2 দুটোরই। ঠিক আছে, তো অবশ্যই তার আগে একটা এখানে লিঙ্কটা নিয়ে আমি একবার চেক করে নিয়ে বলবো। আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল লিঙ্কের সঙ্গে জুড়ে যেতে বলবো, কারণ টেলিগ্রাম চ্যানেল লিঙ্ক শুধু কি দেবে না, টেলিগ্রাম চ্যানেল লিঙ্ক শুধু টেলিগ্রাম চ্যানেল লিঙ্ক শুধু আমাদেরকে পিএইচডি সংক্রান্ত নয়, রিক্রুটমেন্ট জব সংক্রান্ত, পিএইচডি সংক্রান্ত এবং হচ্ছে যাবতীয় নেট সেট গেট এবং আদার্স কম্পিটিটিভ এক্সাম নিয়ে এখনও শুরু করিনি। এই তিনটে তো থাকছেই, তার সাথে পিএইচডি রিলেটেড ইম্পর্টেন্ট নিউজ সবসময় থাকবে আর তাছাড়াও আরও অনেক কিছু থাকবে গাইডলাইন্স। তার জন্য কি করতে হবে, টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্কটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এসপি লিটারেচার ইউজিসি নেট টেলিগ্রাম চ্যানেলের নেম আর https:/t.me/UGC lit। লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। সো শুরু করছি। দ্য ভিক্টোরিয়ান এজ 1850 to 1900, ইউজিসি নেট অ্যান্ড জেআরএফ জুন 2025। টার্গেট আমাদের এখানে কি করতে হবে, আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড হিস্ট্রি অ্যান্ড আদার ইভেন্টস পড়তে হবে। তো আজকে ইভেন্ট অনেকগুলো আছে, এগুলো নিয়ে ডিসকাস করি। কি কি পেটারলু ম্যাসাক্রি 1819 খ্রিস্টাব্দে কেন কি হয়েছে, এই পেটারলু ম্যাসাক্রি হওয়ার আগের কি সিনারিও ছিল, পরে কি হয়েছে, ওই ঘটনাতে কি হয়েছে, সমস্ত কিছু গুগলে সার্চ করে ইংলিশে এবং বাংলায় হিন্দিতে যার যেটা ভাষা বুঝতে সুবিধা হয় একটু ব্যাকগ্রাউন্ড জেনে রাখতে হবে। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট পাসেস দ্য গ্রেট রিফর্ম অ্যাক্ট ইন 1832। এই যে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট গ্রেট রিফর্ম বিল বা অ্যাক্ট পাস করিয়েছিলেন 1832 খ্রিস্টাব্দে। এটার হিস্ট্রি আমাদের জানতে হবে। স্লেভারি অ্যাবলিউশন অ্যাক্ট 1833। এই যে স্লেভারি অ্যাবলিউশন বন্ধ হয়ে গেছিলো, এই যে স্লেভারিরা আমাদের দাসত্ব বন্ধ হয়ে গেছিলো 1833 খ্রিস্টাব্দে, এর কি কাহানি বা কী আছে সেটা জানতে হবে। কুইন ভিক্টোরিয়াস রেইন, এই কুইন ভিক্টোরিয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডেতে, ওনার ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমাদের খুব ভালো করে জানতে হবে। আরও কোনো কিছু বিষয় ওনার সাথে আগে পরে কী যুক্ত আছে সেগুলো পড়তে হবে। প্রশ্ন এখান থেকে ডিরেক্ট আসবে কিনা সেটা থেকে ইম্পর্টেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড হিস্ট্রি সমস্ত ব্রিটিশ লিটারেচারের শুরু থেকে ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ড থেকে আমরা এখন যে পোস্ট মডার্ন পিরিয়ড অবধি আসতে চলেছি, আমি প্রত্যেকটা পিরিয়ড ধরে ধরে কিন্তু বলে দিয়েছি যে কোন জায়গায় কোন বিষয়টা ইম্পর্টেন্ট, কোনটা পড়বো, কোনটা নলেজের জন্য, কোনটা বেসকে স্ট্রং করার জন্য, কোনটা মুখস্থ করার জন্য, কোনটা এক্সামের জন্য লাগবে না লাগবে, সব বলা হয়েছে। তো এখানে তারপর থাকছে দ্য কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো 1848, এটাও পড়তে হবে। আলফ্রেড টেনিসন অ্যাপয়েন্টেড হয়েছিলেন পোয়েট লরেট হিসেবে আফটার দ্য ডেথ অফ উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ ইন 1850। এটা কেন, এই হিস্ট্রিটা আমাদের পড়তে হবে। দ্য গ্রেট এক্সিবিশন ইন লন্ডন কত খ্রিস্টাব্দে, 1851-এ। ওয়ার্ল্ডস ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো আর ওয়ার্ল্ড ফেয়ার, এটাও গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের মধ্যে প্রথম এক্সপো বা ওয়ার্ল্ড ফেয়ার কোনটা, কেন, কখন, কিভাবে এসেছিল, এর শুরুবাত কিভাবে হয়েছিল। চার্লস ডারউইনের অন দি অরিজিন অফ স্পিসিস 1859, এটাও আছে ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডের সময়কালে, এটা পড়তে হবে। সুয়েজ ক্যানাল কনস্ট্রাকশন, সুয়েজ ক্যানাল সৃষ্টি হয়েছিল 1859, কেন, এর হিস্ট্রি। তারপরে সুয়েজ ক্যানাল ওপেন্স লিঙ্কিং দ্য মেডিটেরেনিয়ান টু দ্য রেড সি, এই যে একটা লিঙ্কিং হয়েছিল মেডিটেরিয়ান সি এর সাথে সুয়েজ ক্যানাল ওপেন করেছিল, এটাও কেন। এই যে কয়েকটা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 টোটাল 10টা ইভেন্ট আছে আমাদেরকে পড়তে হবে। তারপরেই আমরা ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডের পোয়েট, ক্রিটিক, তারপর হচ্ছে যারা আছেন ওনাদের লেখাতে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাব। পোয়েট্রি হোক, ড্রামা হোক, নভেল হোক, কোনটা পড়বো না সব কিছু। ঠিক আছে, তো এটাই আজকে আমি হিন্দিতে এখন বলতাম না, যেহেতু এটা ইনফরমেটিভ এবং এটা একটা বোঝানোর বিষয়ের থেকে যে এগুলো তোমাদের বা আপনাদের বা তোদের পড়ার কাজ, সেই জন্য আমি বলে দিচ্ছি
দিচ্ছি, তো আজকে একটাতে হয়ে যাক। আগামী দিন আমরা ব্রিটিশ লিটারেচারের ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড আর আগামী 2 দিন, টোটাল 5 দিনের মধ্যে ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডকে আমরা কমপ্লিট করে রেখে আমরা পেপার 1 পেপার 2 এর এক্সাম রিলেটেড আরও কিছু দুর্দান্ত এবং পরীক্ষার সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, যেগুলো আমরা এক্সাম হলে গিয়ে দেখতে পাবো। তো আবারও हिंदीते बोलार आगे प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। साथ ही साथ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए एसबी लिटरेचर के साथ। प्रचुर परिमाणे लाइक करुन, शेयर करुन, सब्सक्राइब करुन, कमेंट करुन और जुड़े थाकुन एसबी लिटरेचर संगे बेल आइकनके प्रेस करे राखुन जाते करे कोनो अपडेट्स मिस ना हय। और यदि मने हय सत्यि एसबी लिटरेचर हेल्प करते पारे, पारछे, इन फ्यूचारও পারবে, তাহলে অবশ্যই জুড়ে থাকতে হবে আর একসাথে এগিয়ে যেতে হবে एसबी लिटरेचर সাথে हाथे हाथ मिलिए। ठीक है, तो अभी हम हिंदी में शुरू करते हैं। मैंने कही थी हिंदी बंगाली अलग अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन जब मुझे लगती है कोई इन्फॉर्मेशन हो जहाँ पे हमारे हाथों में दिन कम है, तब मैं एक ही वीडियो पे दोनों लैंग्वेज के मैं बता देती हूँ। ऐसे की कोशिश करती हूँ कि आप लोगों का दिक्कत ज़्यादा ना हो। पार्ट पार्ट में कहती हूँ, जब हिंदी कहती हूँ सिर्फ हिंदी, जब बंगाली कहती हूँ सिर्फ बिंदु, एक बंगाली एक ही वीडियो में। मैं ऐसे नहीं बोलती कि पहले 2 लाइन हिंदी फिर 2 लाइन बंगाली, एक वर्ड हिंदी एक वर्ड बंगाली, ऐसे नहीं कहती हूँ। लेकिन एक ही वीडियो में कभी कभी दिक्कत हो सकता है, लेकिन नहीं, आप लोग भी इससे थोड़ी एडजस्ट कर लो। जब इंग्लिश एंड हिंदी में समझ रहे हैं, जब बंगाली एंड इंग्लिश हमने समझ रहे हैं, तो बंगाली और हिंदी को मिक्स करके थोड़ी समझने की कोशिश कीजिए, ताकि हमारे टाइम सेव हो, क्योंकि हमारे हाथ में ज़्यादा दिन नहीं है एग्ज़ाम के। और जब तक हमें कोई ऑफिशियल नोटिस एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं मिल रहे हैं, एग्ज़ाम के डिले या फिर पोस्टपोन वगैरह, इसके बारे में सोचना भी मत, क्योंकि एग्ज़ाम होंगे टाइम पे ही होंगे और एग्ज़ाम टाइम पे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप लोग देखिए, क्या कोई भी बैंक कोई भी जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, उनके क्या एडमिशन्स काम वगैरह यूजी पीजी क्या ये सब बंद है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ चल रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके चल रहे हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें चल रहे हैं तो आपका एग्जाम भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताना है यूजीसी नेट एंड जेआरएफ जून 2025 है हमारे टारगेट, और हम लोगों के टारगेट, और आज के डेट है 9 मई। विक्टोरियन एज 1850 to 1900, इसके लिए आपको क्या पढ़नी होगी? बैकग्राउंड हिस्ट्री एंड अदर इवेंट्स, क्या क्या इवेंट, पेटरलू मैसेक्रे 1819, इसको पढ़नी होगी। इसको डिटेल में क्यों, अब इसके पिछले पहले वाला कहानी, बाद वाला कहानी, इसके टाइम, ये जो पेटरलू मैसेक्रे हो रहे थे तब कैसे आई, क्यों आई, इसके बैकग्राउंड और इसके अच्छे से पढ़ना होगा। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट पासेस द ग्रेट रिफॉर्म एक्ट इन 1832, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या ग्रेट रिफॉर्म बिल एक्ट पास कर दिए, कितने ईयर में, क्यों किए, इसके हिस्ट्री को जाननी होगी, आगे की पीछे की और इस समय कल की। नेक्स्ट स्लेवरी एबोलिशन एक्ट 1833, इसको भी पढ़नी है। क्वीन विक्टोरियाज रेन, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, अल्फ्रेड टेनिसन इज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट आफ्टर डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1850। वर्ड्सवर्थ के मरने के बाद टेनिसन को पोएट लॉरेट के लिए अपॉइंट किया गया है, क्यों, इसके भी कहानी पढ़नी होगी। ग्रेट एग्जीबिशन इन लंदन 1851 एंड वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपो और वर्ल्ड फेयर, दुनिया के विश्व के सबसे पहले वाला वर्ल्ड फेयर, मतलब ये मेला जो होते हैं ये कब शुरू हुई है। चार्ल्स डार्विन्स के ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859, सुएज कैनल कंस्ट्रक्शन गठित हुए थे 1859 में। फिर सुएज कैनल ने वो लिंक ओपन किए थे मेडिटेरेनियन सी के साथ, मेडिटेरेनियन के साथ रेड सी के, वो भी 1869 में। फिर एसबी लिटरेचर के मतलब टेलीग्राम चैनल के नेम एसबी लिटरेचर यूजीसी नेट, और टेलीग्राम चैनल के लिंक ये है https://t.me/ugclet, देन कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और आप लोगों को ये सारी 10 इंसिडेंट्स के बारे में बताए, क्यों बताए आप लोगों को? मैं ब्रिटिश लिटरेचर के बारे में एकदम पिछले से, मतलब बेसिक लेवल से बता रही थी। क्या बता रही थी कि कौन सी ओल्ड इंग्लिश पीरियड से लेकर पोस्ट मॉडर्न पीरियड तक कौन सी पीरियड में क्या बैकग्राउंड हिस्ट्री, क्या बैकग्राउंड हिस्टोरिकल इवेंट पढ़नी होगी, कौन सी पोइट्स की पोइट्रीज, कौन सी क्रिटिसिज्म, कौन सी नॉवेल्स, कौन सी वर्क्स को, ड्रामा को हमें ज़्यादा फोकस देनी चाहिए, कौन सी और किसको लेस इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। मैंने हर चीज़ बताई यहाँ पे 10 इंसिडेंट्स को आपको बेसिक आइडिया के लिए, और इसके बैकग्राउंड को जानना जरूरी है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बेस के लिए भी और आगे समझने के लिए भी आपको ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आने वाले दिनों में हम और 5 दिन लेंगे टोटल, जहाँ पे हम ब्रिटिश लिटरेचर के विक्टोरियन पीरियड के 2 दिन लेंगे, मॉडर्न पीरियड के 1 दिन लेंगे, पोस्ट मॉडर्न के लिए 2 दिन लेंगे। उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे पेपर 1 पेपर 2 के ऐसे टॉपिक्स में, जिससे क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे हम आपको एग्जाम हॉल में जाके बता सकते हैं पेपर 1 2 के इसी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल या फिर कोई भी स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन टाइप, या फिर कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है और कंसेप्ट से
क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों की ही हम वीडियोस बनाएंगे। और क्वीन विक्टोरियाज रेन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने, क्योंकि विक्टोरियन पीरियड में कौन क्वीन थे, क्यों थे, इसके कैसे ये विक्टोरियन पीरियड के रेन हुए, क्वीन विक्टोरिया की कहाँ कैसे, इसको भी पढ़ने होगी। मतलब ये 10 चीज़ें ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कांट अवॉइड एनीथिंग फ्रॉम हियर। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद एसबी लिटरेचर एंड प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर। हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए एसबी लिटरेचर के साथ। प्रोचुर मैंने लाइक कमेंट शेयर एवं सब्सक्राइब करना देखते थे एसबी लिटरेचर। मैं यहाँ पे और एक बार आप लोगों को रिमाइंडर दे दूँ, पेपर 1 के जून 2025 के लिए हमने पिछले 1 महीने से स्टार्ट किए, 1 महीने से स्टार्ट किए हैं अच्छे तरीके से। पेपर 1 को भी हमने सिलेबस अच्छे से डिकोड कर दिए, पेपर 2 को भी डिकोड कर दिया और 4-5 दिन के बाद ये कंप्लीट हो जाएंगे ब्रिटिश लिटरेचर। उसके बाद हम वर्ल्ड लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर के वहाँ पे जाएंगे। हम पेपर 2 के डेटा इंटरप्रिटेशन समझेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पता सब को सॉल्व करेंगे, जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में पूछे जाते हैं, नेट सेट गेट में भी। फिर हम आप लोगों के लिए पेपर 1 के MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी लेकर डिस्कस करेंगे और पेपर 1 के डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग के प्रॉफिट एंड लॉस की मैथ ड्यू है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हम सॉल्व करेंगे। एज से रिलेटेड मैथ्स हम सॉल्व करेंगे, जहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जहाँ से आपको 4 to 6 मार्क्स आपको कैरी होंगे वहाँ से। मतलब हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और भी ज़्यादा अच्छे तरीके पढ़ने वाले हैं आने वाले दिनों में। इसीलिए आप लोगों को क्या करनी होगी, एसबी लिटरेचर के साथ जुड़ जानी होगी और एक साथ हम ग्रो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और चाहे यूथ हो और मतलब जो फाइट हो रहे, वॉर हो रहे, बहुत इंपॉर्टेंट और नाजुक और सीरियस जो चीज़ हो रहे हैं और हम सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से। और बहुत सारी चीज़ हो रही है, लेकिन फिर भी हम खाना खा रहे हैं, नहा रहे हैं, टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं। तो उसी तरह ऑफिस, बैंक, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस भी चल रहे हैं, स्कूल्स भी बंद है समर वेकेशन के लिए, लेकिन हमारे यहाँ बंद है। तो लेकिन हम लोगों का कोई भी काम रुके हुए नहीं है, तो हम रुक नहीं सकते, हमें चलनी होगी। अगर वर्ड 2, 4, 5 दिन, 10 दिन के अंदर रुक गए, शांति फिर से पहले की तरह हो गए, तो फिर तो काम चल रहे हैं और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चलेंगे। आप लोगों के फ्रेंड्स, आप लोगों के परिचित ऑलरेडी किसी कोर्स में भर्ती होकर एडमिशन लेकर क्लास करेंगे और आप अगर हाथ में हाथ रख के बैठ रहोगे तो आपके ही टाइम बर्बाद होगी, आपके ही करियर में आप पीछे पड़ जाओगे, क्योंकि नहीं करनी है जो। तो सिचुएशन जैसा भी हो, चाहे कोई ख़राब होती है तो सभी के लिए ही ख़राब होंगे, अगर अच्छी होती है तो सभी के लिए अच्छी होंगे। एग्ज़ाम पोस्टपोन होती है, नहीं होती है, सब एक साथ ही हम लोगों को पता चलेंगे। जो हमारे हाथों में नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर पैनिक करने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए कोई भी अगर ऐसे कर रहे हैं तो वो खुद अपने साथ कुछ गलत कर रहे हैं और कुछ बुराई कर रही है, जो बात में उनको ही पछतावा होगी मैंने ऐसा क्यों की। तो हेल्थ पहले, फिर आपके उसके साथ करियर, लाइफ, फैमिली लाइफ, सब कुछ है, आनंद, हॉबी, सब कुछ है इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों को टेंशन नहीं करनी, पैनिक नहीं करनी, कॉन्फिडेंट रहनी है और दिल में जो भी हो जाए सुकून रखनी है और आगे बढ़नी है, ठीक है। तो এইটাই বলার যে যুদ্ধ চলছে চারিদিকে, সবাই আর্থিক, মানসিক, শারীরিক সব রকম দিক থেকে ব্যতিব্যস্ত আছে এবং টেনশনে বা একটু অ্যাংজাইটিতে আছে। সবার মেন্টালিটি বা সবার গ্রহণ করার সব কিছুর ক্ষমতা আলাদা আলাদা। কেউ বিন্দাস থাকতে বেশি পছন্দ করে, কেউ একটুতেই ভুলে যায়, কেউ আবার একটা জিনিস সহজে ভুলতেই পারে না। তো এই সময় যে বা যারা একটুতেই প্যানিক করো বা বাড়ির মধ্যে কেউ এরকম সেন্সিটিভ সদস্য আছে, তাকে একটু কেয়ার করে রাখা, পরিচিতর মধ্যে কেউ থাকলে তাকে কেয়ার করে রাখা, যাতে সে টেনশন বা প্যানিক না করে, যাতে প্রথমে আমাদের শরীর স্বাস্থ্য, তারপর আমাদের পড়াশুনো, ক্যারিয়ার, তার সাথে সব কিছু গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের জীবনের শখ আহ্লাদ সবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এই মুহূর্তে একে অপরের পাশে থেকে, সেটা অনলাইন সোশ্যাল মিডিয়ামের মাধ্যমে হোক বা সেটা পরিবারের কাছাকাছি সামনাসামনি হোক, একে অপরের পাশে থেকে এগিয়ে যাওয়া, লড়াই করা, টিকে থাকা, এটা গুরুত্বপূর্ণ। যদি পরীক্ষা পিছিয়ে যায় বা কোনো কিছু ভালো হয়, সেটা সবাই দেখতে পারবে, সবার জন্যই হবে। যদি পরীক্ষা হয়ে যায়, সেটাও সবাই দেখতে পারবে। আর যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায়, যেখানেই হোক, সেখানে সবাই প্রভাবিত হবে বা তার ফল আমাদের সবাইকে ভোগ করতে হবে, কেউ বাদ দিয়ে নয়। তো এখানে এমনটা ভাবার দরকার নেই যে আমার এখানে এরকম হচ্ছে, আমি এখন স্থগিত থাকি, পরে যখন ভালো হবে তখন সব শুরু করবো, তাহলে ভুল করবে। কারণ আমাদের স্নান, খাওয়া, ঘোরাফেরা, পায়খানা, প্রস্রাব সব কিছুই চলছে, স্কুল, কলেজ, ব্যাংক, অফিস, আদালত সবই চলছে, কাজকর্ম ভয়ে হোক নির্ভয়ে হোক চলছে। শুধু আমাদের সেনাবাহিনীরা দিন রাত একাকার করে জেগে আমাদের দেশের রেসপন্সিবল সিটিজেন, আমাদের দেশের সমস্ত নাগরিক এবং আমাদের দেশে যারা সরকার আছেন, সবাই মিলে সব জায়গায় খুব দায়িত্বপূর্ণ সহকারে কাজ করছেন। আমাদেরকে ওনারা নিজেদের সাথে আমাদের সাথে ওনাদের সকলকে কীভাবে সেফটি বা সংরক্ষণ রাখা যায়, সেটা ওনারা সব থেকে বেস্ট
প্রচেষ্টাই করছেন, তো ওনাদের উপর ভরসা রাখুন, ঈশ্বরের উপর ভরসা রাখুন বা রাখো। আর আমরা শুধু একটাই করতে পারি, সেটা হলো প্রার্থনা আর নিজের পরিবারের নিজের কেয়ার করা, কারণ আমরা নিজে সুস্থ থাকলে তবেই পরিবার এবং অপরের সুস্থতার খেয়াল রাখতে পারবো, আদারওয়াইজ ইট ইজ নট পসিবল। সো ডোন্ট ওয়ারি, এভরিথিং উইল বি ফাইন, হ্যাভ ফেথ and keep patience, stay calm and cool. We will achieve whatever we want in our life, what kind of goals we have in our mind, we will achieve, we will succeed in everything, and we will own the match. ये वॉर हम पहले भी जीते थे, आज भी जीते हैं, नेक्स्ट टाइम भी जीतते ही रहेंगे। ये तो है देश की यूथ, और साथ साथ हम अपने अपने इंडिविजुअल के जो लाइफ में यूथ चल रहे हैं हर दिन, उसमें भी हमें उतारनी है और बहुत अच्छे तरीके से खेल के, बहुत अच्छे तरीके से उत्तीर्ण हो के हमें यहाँ से अलविदा कह के दुनिया से जाना है, जानी है। लेकिन हम हार नहीं सकते, हम बीमार नहीं पड़ सकते, खुद के बीमारी खुद नहीं फैला सकते। हमें इस वक्त मन को सख्त करके हमें रहनी होगी, एक दूसरे के हाथ पकड़ कर। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। अगेन प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने की वजह से आप लोगों को क्या होंगे, टेलीग्राम चैनल में जुड़ने से आप लोगों के PhD से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जॉब रिक्रूटमेंट से इन्फॉर्मेशन, नेट सेट गेट के इन्फॉर्मेशन, अदर्स लाइफ से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन और मॉडल वैल्यू मिलेंगे। सो गुड नाइट फॉर टुडे, शुभ रात्रि, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।